Hello class, good morning. In the last class we have discussed about set and its representation. There are two ways to represent the set, and the first exercise of some few questions also we have done today. I am going to start the second exercise, and exercise is based on the types of set. Okay, and they are what I am thinking, I am considering is that you all know about it, because the one time the whole chapter has finished, but just now I am repeating it. So I am going to start this topic from the equal set. Okay, so equal set is, what is equal set? If two set have exactly the same element, they are called that both sets are said to be equal. For example, इक्वल सेट क्या होता है क्लास? देखिए मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं, 1 2 3, ओके, एंड द B is 3 2 1. Now we say A is equal to B. And another example class, for example, A is 2 4, right, and the B is 2 2 4 4 4, right. Both sides also will be equal. Number of element is not a matter. The same element that should be, ठीक है ना, exactly element same होना चाहिए, exactly number of element change हो सकते हैं क्लास, ठीक है. अच्छा, अब इसके बाद नेक्स्ट एक और टाइप आ रहा है क्लास इसका, इक्वल सेट के बाद नेक्स्ट आपने स्टडी किया होगा फाइनाइट एंड इनफाइनाइट में आपको बताया था, फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट, फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट. क्लास इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, नंबर ऑफ एलिमेंट सेम भी हो सकते हैं, राइट, तब तो वो इक्वल होगा. और अगर नंबर ऑफ एलिमेंट सेम नहीं है बट एलिमेंट सेम है, यहाँ पे 2 4 है, यहाँ पे 2 4 है, रिपीटेशन इज नॉट अ मैटर, रिपीटेशन इज मीनिंगलेस, ठीक है. इट हैज नो एनी मीनिंग इफ द एलिमेंट्स आर बीइंग रिपीट. एंड फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट में क्या होगा, जैसे कि फॉर एग्जांपल आप लिखते हैं सेट ऑफ नेचुरल नंबर, सेट ऑफ नेचुरल नंबर. So this is infinite set because there are infinite natural number, and the B is a set of vowels. It is finite. Which is countable is finite, which is not countable it is infinite. Okay, class clear? Next आपका आ रहा है empty set class. Empty sets also may be called as null set and void set. There are three names. Okay, null set, equal set, and a void set. It is represented by 5. This is 5. Okay, by this Greek letter also we may use, and also you draw just only the curly bracket, empty curly bracket. It is also representing empty set. Okay, and empty set, what is empty set? Example लेते हैं class. A सेट आपने लिया, x is that x, and x is lying between 2 and 1, okay, and x belongs to natural number. X belongs to natural between 1 and 2. So this is 5 set. There is no any element which will lie between 1 and 2 and that number will belong to natural. It is not possible. It is 5. Plus all of the very simple definitions are there. Okay, it is not any big topic, big logic. Simple few definitions are there, and in some other boards it is in the class 7, then it is a syllabus of class 7 and 8 level students are sometimes study. I have seen in some other boards. Okay, no problem. But class की definition थी जो मैंने आपको भी explain किया. इसके बाद हम क्लास एक में आपको explain करना चाहता हूँ इक्विवेलेंट सेट. इक्विवेलेंट सेट क्लास क्या होता है? इक्विवेलेंट सेट से पहले मैं आपको कुछ तो आपको और एक्सप्लेन करूंगा. दिस इज कॉल्ड कार्डिनल नंबर ऑफ सेट. एक नेक्स्ट आपका टॉपिक है क्लास कार्डिनल नंबर ऑफ सेट. ये क्या होता है मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा. एक एग्जांपल दी क्लास, मैंने एक सेट लिया जिसके अंदर एलिमेंट रखे मैंने A B C. ओके, अब अगर आपको फाइंड करना है कार्डिनल नंबर, ये शो करता है कि उस एलिमेंट के, उस सेट के अंदर कितने एलिमेंट हैं. तो अगर आप लिखते हैं NA इज इक्वल टू 3, नंबर ऑफ एलिमेंट 3 है,
तो आप लिख देंगे Na is equal to 3. n रिप्रेजेंट कर रहा है नंबर ऑफ एलिमेंट, तो कार्डिनल नंबर रिप्रेजेंट करता है कि उस सेट के अंदर कितने नंबर ऑफ एलिमेंट है प्रेजेंट, ठीक है ना। प्लस ये हो गया कार्डिनल नंबर। एंड नेक्स्ट इसके बाद आप इक्विवेलेंट मैं भी एक्सप्लेन कर रहा हूं, जस्ट नोट डाउन क्लास इसको। प्लस इक्विवेलेंट सेट में क्या है, फॉर एग्जांपल आप एक दो सेट लेते हैं, आपने ए लिया 1 2 3, क्लियर। आपने एक बी सेट लिया जिसके अंदर एलिमेंट है ए बी सी, प्लस इक्विवेलेंट में नंबर ऑफ एलिमेंट से होना चाहिए। तो इफ एन ए इज इक्वल टू एन बी, यहां भी 3 यहां भी 3 है, so that we say A is equivalent set of B। A भी क्या होगा, इक्विवेलेंट, और इक्विवेलेंट साइन नहीं होता है बस। आप डबल साइड एरो बनाएंगे which represent the equivalent, A and B के आपस में इक्विवेलेंट है। अच्छा, अब अगर आप कोई इक्वल सेट लेते हैं तो एवरी इक्वल सेट इज इक्विवेलेंट सेट, एवरी इक्वल सेट इज इक्विवेलेंट सेट। बट हाँ, एवरी इक्विवेलेंट कौन सा हो, अब देखिए इक्वल में मैंने आपको क्या देखा था कि 1 2 1 2 3 1 2 3 भी, मैं एग्जांपल ले रहा हूं। फॉर एग्जांपल आपने एक ए एग्जांपल लिया ए बी सी, ओके, एंड बी एग्जांपल लिया बी सी एंड ए। अब यहां भी नंबर ऑफ एलिमेंट 3 है, यहां भी नंबर ऑफ एलिमेंट 3 है, तो आप देखेंगे ए इज इक्विवेलेंट टू बी, तो इक्वल हो गया। बट अब अगर आप क्या ले रहे हैं, अब अगर आप ए ले रहे हैं 2 and 4 जो मैंने अभी एग्जांपल लिया था, और आप बी ले रहे हैं 2, 2 and 4 and 4 and 4 फॉर एग्जांपल, तो ये दोनों क्लास इक्वल है बट इक्विवेलेंट नहीं है, ठीक है। इस केस में ये बात हमारी फुलफिल नहीं होगी। बट इस वाले केस में जहां पर नंबर ऑफ एलिमेंट सेम होंगे, इक्विवेलेंट सेट कंसेप्ट जो है वो नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, नंबर ऑफ एलिमेंट जो है क्लास वो सेम होना चाहिए, होगी क्लास क्लियर। तो equivalent set is nothing, just only if the number of element are same in both the set, then they both the element are called as equivalent set, okay class। So class, now after this now I'm going to start some few question from exercise 1.2, okay। क्लास क्वेश्चन नंबर 1 देखिए। अब इसमें आपको बताना नल सेट कौन से है क्लास, set of odd natural number divisible by 2, right? So there is no any odd natural number which can divisible by 2, so this is the null set class। ये आपका null set हो गया, कोई इसका एलिमेंट नहीं है, 5 आ रहा है। set of even prime number is starting from 2 2 3 5 7, बट 2 आ गया ना, तो 2 आ गया तो एक एलिमेंट तो आ रहा है ना 2, सो इसका सेट क्या बनेगा, इसका जो आपका सॉल्यूशन होगा वो आपका 2 बनेगा, तो दिस इज नॉट अ नल सेट, ओके क्लास। नेक्स्ट, x is natural number less than 5, less than 5 means 1 2 3 4 and more than 7, there are so many numbers are there which is more than 7, so there is no any one number which satisfy both the condition, because here the and is be there, right, and यहाँ पर मेंशन है, तो क्लास यहाँ पर आपका हो जाएगा दिस इज द नल सेट, ओके क्लास। कोई ऐसा एलिमेंट नहीं है, and it's very simple thing, why is the point common to any two parallel line never intersect to each other, and it says x is a point common to any two, so this is not possible, it is also the null set, right, okay class। now I'm going to start the next question, class क्वेश्चन नंबर 3 मैंने किया यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको बताना है फाइनाइट एंड इनफाइनाइट, वेरी सिंपल क्वेश्चन। सेट ऑफ लाइंस व्हिच आर पैरेलल टू एक्स एक्सिस, इट इज इनफाइनाइट, एंड इंग्लिश लेटर इन सॉरी सेट ऑफ लेटर इन इंग्लिश अल्फाबेट, दिस इज फाइनाइट, ओके क्लास। एक्स एक्सिस पैरेलल तो इनफाइनाइट लाइंस होगी, ठीक है ना, और स्लोप कितना होता है एक्स एक्सिस का, स्लोप ऑफ एक्स एक्सिस इज 0, ठीक है ना। अ लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, द स्लोप ऑफ लाइन व्हिच इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस इज इक्वल टू 0, ओके क्लास। क्लास एक्चुअली क्या है 11 12 के अंदर ये क्वेश्चंस बहुत मैटर नहीं, मैटर क्या है, मैटर ये आप कॉन्सेप्ट सीखना, और जो क्लास 9 10th में आप
इसे कह सकते हैं क्वेश्चन के अंदर जो आपका मेन कोर्स था जिसमें आप उसको आप यूज करते थे, वो यहाँ पर एक प्री कोर्स बन जाता है। और ऑब्वियसली वो होता ही प्री कोर्स है 11 के लिए 9-10 का सिलेबस, उसको आपको लर्न करना है कि स्लोट स्लोप क्या है। अभी मैं आपको जैसे टॉपिक आपको चलेगा, मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा ये चीजें। और क्लास बहुत दिन से हो रहा है, जैसे ट्रिग्नोमेट्री मैंने आपको एक्सप्लेन किया, पीएमआई मैंने आपको एक्सप्लेन किया, सो मेनी क्वेश्चन वी हैव डन, राइट। सो मैं एक सारे चैप्टर पे फिर से रिकैप दूंगा, तो बट आपको फिर से प्रैक्टिस करना है। अगेन यू डू ऑल द क्वेश्चन, राइट। और अगर आप खुद से कर सकते हैं, इट्स मोर बेटर, राइट। असाइनमेंट आप करो, जो मैंने असाइनमेंट आपको सेंड करा है, डू ऑल दिस क्वेश्चन ऑफ 7 given in assignment. Class set of number which is multiple of 5, it is also infinite number are there, right? And animals living on earth, it is finite. And set of circles passing through the origin, through one point, origin भी आ सकता है, one point भी आ सकता है, it is also infinite, okay। किसी भी रेडियस का सर्कल आप ड्रॉ करेंगे वो ओरिजिन से पास हो सकता है। अच्छा, क्लास एक थ्योरम थी सर्कल्स में, क्लास 9 पे आपने स्टडी किया होगा कि देयर इज ओनली वन एंड द वन सर्कल व्हिच कैन पास थ्रू एनी 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। तो अगर ये क्वेश्चन आ जाता है कि सर्कल इज पासिंग थ्रू एनी 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट, तो जस्ट ओनली वन सर्कल इज देयर, इट इज द फाइनाइट, सो उससे तो आपको हो जाएगा फाइनाइट। तो 3 पॉइंट्स में फाइनाइट होगा, ठीक है, और 1 पॉइंट में इनफाइनाइट। ओके क्लास, so class now we will do all this question and problem. Class question number 4, there are the 2 pair of set are given there. We have to state whether the sets are equal or not, okay। A x exact x is a multiple of 10. Multiple of 10 means 10 20 30 minus 10 minus 10 minus 20 minus 30, and next have 10 15 12 20 25 and so on. So they are not equal, they are unequal, okay। This is the answer class. See the next one class, A 2 4 6 8 10, the B x exact x is a positive even integer. Even integer means and x less than and equal to 10। तो यहाँ पर भी आपका एलिमेंट क्या आएगा, यहाँ पर आपके आंसर्स 2 4 6 8 10 ही आएंगे क्लास। So A is equal to B, okay। Come on, question number 6. There are some few sets are given there. We have to select the equal set. Equal set आपको find करना है। You see A 2 4 8 12, B 1 2 3 4, right? And the D is also 3 1 4 2. So one is B is equal to D, and in which set can be equal? G and E. E is minus 1 and 1 and G is 1 and minus 1, right? So E is equal to G, and no any other set are there which is equal to each other, okay class। So this is the required answer. B and D, E and G are equal, and in this, so the first one is unequal, second is class equal, okay class। क्लास इस एक्सरसाइज के बाद द नेक्स्ट टॉपिक ऑफ एक्सरसाइज 1.3, सो द टॉपिक इज सबसेट्स। सबसेट क्या है क्लास, क्या है सबसेट्स? ये होते हैं कि एक कोई आप यूनिवर्सल सेट से आप उससे कुछ, जैसे कि एक रूट है, ब्रांच से निकलती है ना, ब्रांच एंड सब ब्रांचेस, ऐसे ही एक सेट है, उसके एक सबसेट्स है, ठीक है। फॉर एग्जांपल सबसेट बहुत इजी कॉन्सेप्ट है क्लास। इसमें फॉर एग्जांपल ए आपका एक सेट है 1 2 3 और 4, ओके। आपने एक बी सेट फॉर्म किया, तो इसी से ही फॉर्म किया, मतलब जो एलिमेंट लिए वो आपने यहां से लिए, आपने 2 and 4 ले ली, 2 and 4 लिया, तो 2 and 4 से लिया क्लास, तो इसको आप बोलेंगे B is the subset of A. It is a sign of subset. The topic is subset. It's a very simple thing class. अब क्लास इसमें क्या होगा, इसमें ये होगा अगर B का सबसेट है, अगर कोई एक एलिमेंट A, फॉर एग्जांपल यहाँ पर 2 है, जैसे 2 अगर बिलोंग कर रहा है B से, राइट, तो ये इंप्लाइज करेगा कि 2
बिलोंग करेगा ए को भी, क्योंकि क्या है, बी इज अ सबसेट ऑफ ए, बी ए का सबसेट है, बी फॉर्म हो रहा है तो ऑब्वियसली इसके सारे एलिमेंट ए में प्रेजेंट होंगे। तो यहां पर सेकंड क्लास आएगा इंप्लाइज कि अगर 2 बी से बिलोंग कर रहा है तो ए से बिलोंग नहीं करेगा। अब इसको हम जनरल में कैसे स्टडी करेंगे? जनरल फॉर एग्जांपल आपका ए एंड बी दो सेट है और कहा गया कि बी इज अ सबसेट ऑफ ए, बी ए का सबसेट है। फॉर एग्जांपल एक मैंने एलिमेंट लिया के, तो के अगर बिलोंग कर रहा है बी से, विच इंप्लाइंग दैट के इज आल्सो बिलोंग्स टू ए। क्यों? क्योंकि बी जो है वो ए के अंदर है, बी इज इनसाइड ऑफ ए, ठीक है। तो उसके जब इनसाइड है तो अगर के बी में बिलोंग कर रहा है तो ए बिलोंग कर रहा है। सिंपल ऐसा कॉन्सेप्ट है, फिगर समझिए। जैसे ये आपका ए है क्लास, तो बी जो होगा वो इसके अंदर होगा ऑब्वियसली, तो बी ए के इक्वल हो सकता है, बी ए के इक्वल हो सकता है, बट इसके ज्यादा नहीं हो सकता क्योंकि बी ए का सबसेट है, ठीक। ऐसा ही हो सकता है, आपने ये ए बनाया, बी आपने ऐसे बना लिया, इट इज वे पॉसिबल, इट इज वे पॉसिबल। तो यहाँ पर ये बी भी है और ये बी है, तो बी ए का सबसेट हो क्लास ये हो गया। तो क्लास इससे सबसेट का हमने क्या स्टडी किया? देखिए कोई भी एक सेट अपने सेट का सबसेट हो सकता है, ठीक। तो यहाँ पर दो पॉइंट्स हैं क्लास जो आपको स्टडी करना है। पहला ये है कि कोई सेट ए इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ, सेट ए इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ। कोई एक सेट अपने ही सेट का सबसेट होता है, ठीक है। नेक्स्ट आप देखिए यहां पर एक चीज है फाई, फाई मींस नथिंग, कुछ नहीं होना, तो एक फाई सेट तो फॉर्म हो ही सकता है। तो जो आपका फाई है, तो जो फाई इज आल्सो द सबसेट ऑफ ए ऑफ एवरी सेट, फाई इज द सबसेट ऑफ एवरी सेट। तो फाई जो है, तो आपने दो पॉइंट्स पढ़े। पहला पॉइंट, हर एक सेट अपने सेट का सबसेट होगा, नंबर वन थिंग। नंबर टू, फाई जो होगा वो किसी हर एक सेट का सबसेट होगा। ओके क्लास, क्लियर? क्लास ये बहुत ही एक स्मॉल सी स्टोरी थी सबसेट के बारे में, बहुत टफ है, इट्स वेरी सिंपल थिंग क्लास। अच्छा, अब इसमें एक पॉइंट क्लास और आ रहा है, वो क्या है ये क्लास? वो ये है, जैसे कि आप इस एग्जांपल को देखिए, मैंने जो आपको एग्जांपल यहाँ पर एक्सप्लेन किया, मैंने कहा यहाँ पर ए एंड बी इक्वल है, तो मैंने कहा ए और बी इक्वल हो सकता है, ए बी इक्वल हो सकता है। तो या मैं एक एग्जांपल लूं, मैंने आपको एक ए लिया फॉर एग्जांपल 1 and 2, ठीक है। मैंने एक बी एग्जांपल लिया 1 and 2, तो आप इन दोनों से क्या इम्प्लाइज कर सकते हैं? यहां से इम्प्लाइज हो सकता है कि जो बी है वो ए का सबसेट है, इससे ये तो मिल रहा है कि बी ए का सबसेट है। बट क्लास आप ये भी तो कह सकते हैं कि ए जो है वो बी का सबसेट है, ओके। तो अगर बी ए का सबसेट है और बी और ए बी का सबसेट है, तो हम कह सकते हैं व्हिच इज इंप्लाइज दैट ए इज इक्वल टू बी। तो ए बी क्या होंगे आपस में? क्लास इक्वल होंगे, ओके। तो अगर बी ए का सब क्लास, देखिए अब यहां आपको लर्न क्या करना है, आपको एक बार ये लर्न करना है, एक बार ये लर्न करना है, सबसेट तो आपको स्टडी होगा, आपको समझ में आ गया होगा। और ये पॉइंट आपके क्लास इंपॉर्टेंट है, जो भी हम लोग यूज करेंगे आगे के क्वेश्चंस कि अगर किसी दो सेट्स को इक्वल प्रूफ करना है, तो हम बी ए को बी का ही सबसेट प्रूफ कर दें, ए बी का सबसेट प्रूफ कर दें, तो ये प्रूफ हो जाएगा कि ए इज इक्वल टू बी। इफ एंड ओनली इफ कंडीशन हमारे पास ये होनी चाहिए, ओके क्लास। तो यहां पर क्लास आप क्या लगाएंगे? यहां पर आप डबल इंप्लाइज लगाएंगे। क्यों? इससे क्या मीनिंग है? इसका मीनिंग ये है क्लास कि अगर ये कंडीशन फुलफिल हो रही है तो ये ट्रू होगा, अगर ये ट्रू है तो ये भी फुलफिल होगा, ओके क्लास। तो बी ए का सबसेट है, ए बी का सबसेट होगा, तो ए इक्वल टू बी होगा, ओके क्लास। मैंने यहाँ पर एग्जांपल लिया, आप यहाँ पर देखिए, मैंने फिगर आपको ड्रॉ किया। इस फिगर फॉर एग्जांपल मैंने एक सर्कल बनाया, इस सर्कल के अंदर एक एलिमेंट लिए और उसी में बी ए के इक्वल था, तो मैंने ए के ऊपर ही बी को जो है ड्रॉ किया। यहाँ पर तो इनसाइड है, यहाँ पे एग्जांपल ये नहीं हो पाएगा, बट यहाँ तो ये हो जाएगा क्योंकि यहाँ ए और बी दोनों इक्वल है। तो जब बी और ए इक्वल है तो क्लास ये दोनों इक्वल हो गया, और ये क्लास ये आपको लर्न करना है, इंपॉर्टेंट है, और ये तो पॉइंट आपके इंपॉर्टेंट है क्लास। अब सबसेट के बाद क्लास एक पॉइंट और आता है, उसको बोलते हैं प्रॉपर सबसेट। देखिए प्रॉपर वर्ड जो है क्लास, प्रॉपर वर्ड आप क्या सजेस्ट कर रहा है आपको? प्रॉपर सबसेट क्या मीनिंग है? प्रॉपर सबसेट की मीनिंग ये है क्लास की उसके अंदर कोई एक एलिमेंट जो आपका ओरिजिनल सेट है उससे एटलीस्ट एक एलिमेंट कम होना चाहिए, तब आप उसको आप बोलेंगे प्रॉपर सबसेट। क्लास यहां पर देखिए, मैंने ए और बी लिया,
तो बी ए का सबसेट है, बट बी ए का प्रॉपर सबसेट नहीं है। क्यों? क्योंकि दोनों के एलिमेंट इक्वल है। एटलीस्ट एक एलिमेंट जब हम कम कर देंगे बी में, तो बी ए का हो जाएगा प्रॉपर सबसेट। एक एग्जांपल क्लास देखिए। फॉर एग्जांपल मैंने ए लिया, मैंने ए में प्लेस किया 1 2 3, मैंने बी लिया 1 and 3, एक एलिमेंट कम हो गया। अब जब एक एलिमेंट कम हो गया तो आप बोलेंगे बी इज द क्लास सबसेट के लिए, बी इज द प्रॉपर सबसेट ऑफ, बी इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ ए। तो क्लास बी ए का प्रॉपर सबसेट हो गया, ठीक है। एक एलिमेंट कम होना चाहिए ये, क्योंकि क्लास देखिए प्रॉपर चीज देखिए, फॉर एग्जांपल जैसे ये कैप है क्लास, अब ये कैप अगर यहाँ पर फिट हो रही है, मीनिंग इज दैट थोड़ा साइज इसका छोटा है ना। अगर साइज का इक्वल है या अगर ये कैप यहाँ पर फिक्स हो रही है, मीनिंग इज दैट कि इसका साइज तभी तो प्रॉपर्ली फिट हो रही है। अगर साइज दोनों का आप इक्वल कर दें तो ये इसमें फिट नहीं हो पाएगा। ऑब्वियसली यहाँ पर भी यही कॉन्सेप्ट यहाँ पर भी प्रॉपर सबसेट का एग्जांपल है। एटलीस्ट एक एलिमेंट कम होना चाहिए, उसका बोलेंगे प्रॉपर सबसेट। ओके क्लास, आपको इस फिगर में आपको एक चीज मुझे बताना है और, बिकॉज ये सबसेट है। सबसेट में आप यहाँ पर लाइन ड्रॉ करेंगे, ये साइन है आपका सबसेट का। और क्लास प्रॉपर सबसेट में देखिए, क्लास प्रॉपर सबसेट कैसे रिप्रेजेंट करते हैं आप? प्रॉपर सबसेट में आप लिखेंगे, जैसे आप इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो आप यहाँ लिखेंगे बी इज सबसेट ऑफ ए एंड, यहाँ पर क्लास एंड लगाइए, एंड ए डज नॉट इक्वल टू बी। तो इन दोनों की मीनिंग से क्या मिलेगा आपको? मिलेगा बी जस्ट ओनली वन लाइन एंड ए। तो ये साइन क्लास हो गया प्रॉपर का, और ये साइन है सबसेट का। ओके क्लास, अच्छा अब क्लास यहाँ पर एक डेफिनेशन और आ रही है, इट इज कॉल्ड सुपर सबसेट, सॉरी सुपर सेट। सुपर सेट क्लास क्या होता है? वैसे क्लास यहाँ पर देखिए बी जो है वो ए से फॉर्म हो रहा है, बी इज कमिंग आउट फ्रॉम ए, तो ए को बोलेंगे सुपर सेट। बी ए का सबसेट है, ए बी का सुपर सेट है, ठीक है। तो आप बोलेंगे ए इज द सुपर सेट ऑफ ए ऑफ बी, सॉरी, ठीक है। विच एवर इज सुपर, आप वर्ड आपको सजेस्ट कर रहा है, सब एक सब ब्रांच हो रही है, सुपर, दोनों वर्ड अलग अलग हैं, दोनों की मीनिंग आपको समझ में आ रही होगी। सिंपल मीनिंग है कि बी ए का सबसेट है और ए बी का सुपर सेट है, ठीक क्लास। तो क्लास ये एक आपका प्रॉपर, अब ये मैंने प्रेजेंटेशन दे दिया, प्रेजेंटेशन आप लर्न कर लीजिएगा। इक्वल है ये सबसेट है, इक्वल नहीं है तो ये प्रॉपर सबसेट होगी क्लास। क्लास में इस वीडियो में आपको चीज और बता रहा हूँ, सिंगलेटन सेट। किसी भी सेट के अंदर अगर नंबर ऑफ एलिमेंट 1 है तो उसका बोलते हैं सिंगलेटन सेट, ठीक है। सिंगल से फॉर्म हुआ है सिंगलेटन सेट। और फॉर एग्जांपल आपने एक जैसे कोई सेट है क्लास, उसके अंदर एक एलिमेंट, नंबर ऑफ एलिमेंट 1 हो, या आप जैसे ए है फॉर एग्जांपल, ठीक है, तो नाउ ए इज कॉल्ड अ सिंगलेटन सेट क्लास। ओके क्लास, अब यहाँ पर इस एक्सरसाइज टॉपिक रहेगा, जैसे कि आपको बताना है इंटरवल्स ऑफ रियल नंबर, रियल नंबर्स के जो इंटरवल्स फॉर्म होते हैं, ओपन ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट, जो हम लोग जो मैं वर्ड यूज कर रहा था, मैंने आपको एक्सप्लेन भी किया था कुछ वीडियोस में, ट्रिग्नोमेट्री के वीडियोस में आई थिंक, बट यहाँ पर वो एक टॉपिक की फॉर्म में दिया है, मैं आपको उसको एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है। क्लास हम नेक्स्ट क्लास में हम उनको थोड़ा स्टडी करेंगे, फिर हम 1.3 एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। क्लास, गुड बाय।